براہ راست شو فضل ربی میں زندگی ٹیلی ویژن پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی مہربانیوں کے لیے، اس کی رحمت اور بخششوں کے لیے، اور خدا کی محبت کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، بنی نوع انسان کو تربیت کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اور دنیا میں جو ایک بہت بڑا دانشور شخص گزرا ہے جس کو سلیمان نبی کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے۔ اور دنیا میں مختلف مذاہب اور مکتبہ فکر کو ماننے والے لوگ پائے جاتے ہیں، اور جب آپ ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں، مختلف نظریات کو ماننے والوں کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ایک واضح مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کے اخلاقیات اس مقام تک پہنچ جائیں جنہیں عرفہ اور اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاقیات کی اس بلندی پر سوچیں اور اعمال پہنچ جائیں جہاں پر بھلائی، انسانیت کی خوبصورتی نظر آئے۔ کیا یہ مقصد جب ہم اپنے اپنے مکتبہ فکر میں، مذاہب میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، کیا اخلاقیات کی اعلیٰ اور عرفہ روایات اور سوچیں نظر آتی ہیں، یا ابھی یہ مقصد کوسوں دور نظر آتا ہے؟ میں مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتا رہتا ہوں، اور آغاز میں چند باتیں کروں گا جو حقائق ہیں، اور آنے والے شوز میں ابتدا میں کوشش ہوگی میری کہ چند سچائیاں جو اس وقت لوگ جن کا سامنا کر رہے ہیں اس حقیقت سے بھی نظریں نہ چرائی جائیں۔ ایک ہندو شخص جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اس کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسیحیوں اور دیگر لوگوں کی جب بات ہو رہی تھی کہ جب حقیقتاً محبت اور مدد کرنے کی بات آتی ہے تو کوئی وہاں پر نظر نہیں آتا، اگر آتے بھی ہیں تو بہت کم لوگ ہیں۔ ایک شو دیکھ رہا تھا جس میں ایک اسلامی ملک میں ایک چینل کے لوگ ایک جگہ پر پہنچے، اور وہاں پر جس شخص سے بات کی اس نے ٹوپی پہنی ہوئی تھی، نمازی لگ رہا تھا، اور اس سے پوچھا کہ آپ کی مدد کے لیے کوئی آیا یا نہیں؟ تو اس کی آنکھوں اور اس کے دل کی حالت سے اس کی جو صورتحال ہے وہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے کہا کہ جناب ہماری تو دعائیں اللہ تعالیٰ بھی شاید اس تک نہیں پہنچ رہی، جواب نہیں مل رہا۔ یہ انسان جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم مشکل میں ہیں، ہم دکھ میں ہیں، ہماری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ اسی طرح سے ایک ملک میں تھا کچھ عرصہ پہلے، اور وہاں پر بہت سے مسیحیوں جو رہنما تھے ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، اور میں آپ کو خدا کی حضوری میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان میں سے 99% لوگ جو رہنما تھے وہ جب میرے پاس آئے، ان کی زیادہ تر کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ جو ان سے اعلیٰ اور عرفہ مقام پر بیٹھے ہوئے رہنما تھے، ان کی زیادتیوں اور ان کے ناہموار رویوں اور ان کے وہ ترازو جو وہ اپنی عقل سے اس طرف جھکا دیتے ہیں جو کلام کے متصادم ہوتی ہے، 99% کی بات کر رہا ہوں، لمحہ فکریہ ہے۔ اور اس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں خدا کی تربیت کی، تو وہ تربیت ہمیں آج کہاں تک لے کر آئی ہے؟ کیا اس خدا کی طرف، اس کے کلام کی طرف، یا کچھ اور تصویر ہمیں نظر آ رہی ہے؟
بہت ضروری باتیں ہیں، اہم باتیں ہیں جب خدا کا کلام انگلی ہماری ذات کی طرف اٹھاتا ہے، جب وہ ہمیں کہتا ہے کہ تجھ میں یہ کمی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے تو تولا گیا لیکن تو کم نکلا ہے۔ خدا کے کلام کے ترازو میں جب باتیں ہوتی ہیں تو کون اس کے کلام کے مطابق عمل کر رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو میرے لیے اور پوری دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے آج ضروری ہے کہ عملی صورت ہماری کیا ہے۔ اگر ایسی ہی حالت میں وہ لوگ جو برسر اقتدار ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے اور اختیار ہے، اگر ایسی صورت جہاں پر مدد کی ضرورت ہے ان کی ہوتی، ان کے خاندان کی ہوتی، ان کی ماں بہنوں کی ہوتی، تو پھر دوسرے لوگوں کی جگہ پر جا کر وہ سوچیں کہ ان کو کیسا محسوس ہوتا۔ کلام میں لکھا ہے جو تم چاہتے ہو اپنے لیے وہی دوسروں کے لیے بھی چاہو۔ تو یہ آیت کسی مسلمان کی زندگی میں، مسیحی کی زندگی میں، ہندو کی زندگی میں، یہودی کی زندگی میں، پارسی اور بہائی کی زندگی میں، انسان ہوتے ہوئے کیا یہ پوری ہو رہی ہے؟ خدا تربیت کے مواقع فراہم کرتا ہے، تربیت پذیر زندگی کی راہ پر ہے، اور جب مدد کی ضرورت آتی ہے تو پھر خدا جس کے بارے میں ہمارا دعویٰ ہے ہم اس کی پیروی کرتے ہیں۔ زبوروں کی کتاب زندگی کے نشیب و فراز کے تجربات سے بھری پڑی ہے۔ خدا اور انسان کے معاملات کیسے چلتے تھے، انسانوں کے ساتھ معاملات، اور زبور کی کتاب میں مدد کے تعلق سے لکھا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، یہ زبور 46 ہے، وہاں پر لکھا ہے خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستعد مددگار۔ وہ خدا جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، خدا ہماری پناہ اور ہماری قوت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم میں قوت بنی ہوئی ہے، ہم اس کی پناہ میں ہیں، تو یہ ہماری قابلیتوں کی بدولت نہیں، یہ خدا ہی کی دین ہے، یہ اس ہی کی بخشش ہے کہ ہماری قوت بحال ہے، ہم اس کی پناہ اور محافظت میں ہیں۔ اور پھر لکھا ہے مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ خدا جب تمام سہارے بے سہارے ہو جاتے ہیں، جب کہیں سے بھی کمک نہیں پہنچتی، تو لکھا ہے خدا مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ اب خدا مدد کے لیے کن کو استعمال کرتا ہے؟ وہ فرشتوں کو بھی کر سکتا ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کو ہلا سکتا ہے، لیکن اس نے انسان کو انسان کا مددگار پیدا کیا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ خدا مصیبت میں مستعد مددگار ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے خدا کی مدد بلا امتیاز اور بلا طرفداری کے جاری رہتی ہے۔ اور اگر کوئی خدا کے دعوے کی بات کرتا ہے، خدا کی پیروی کی بات کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت میں ہے تو یہاں پر مستعد مددگار، ہوشیار، جلدی سے مدد کرنے والا، جلد پہنچنے والا خدا مددگار ہے۔ تو آج بھی اس کی مدد پہنچتی ہے۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہماری نگاہ انسانوں پر جانے سے زیادہ خدا کی طرف جانی چاہیے، اور اگر آج انسان مدد کے لیے نہیں بھی پہنچ رہے تو ہمیں منفی رویوں میں نہیں آنا چاہیے، بلکہ خدا پر توکل کرتے ہوئے جب ان کو ضرورت پڑے تو ہمیں، جب خدا برکت دے، ہمیں ہر ایک کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ پوری دنیا میں خدا ہمارا مددگار ہے اور اس کی مدد ہم تک پہنچتی ہے، اور اس مدد میں انسانوں کا ایمان بھی شامل ہے کہ خدا انسانوں کے ایمان کی جب بات کرتا ہے تو خدا ایمان تک لانے کے لیے بھی، بائبل میں لکھا ہے، باپ تمام لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور جب کوئی انسان پکارتا ہے خدا اس کو اپنی ذات کے مکاشفے تک لے آتا ہے، ایمان تک لے آتا ہے۔ اور جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو سورہ البقرہ اور اس کی
43ਵੀं आयत है। यहां पर लिखा है, अरबी भी है और उसके बाद हम उर्दू तर्जमा देखते हैं। मगर जिनको खुदा ने हदायत बख्शी वो उसे गरां नहीं समझते, और खुदा ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को यूं ही खो दे। खुदा तो लोगों पर बड़ा मेहरबान है, फिर खुदा की मेहरबानी की बात है, और साहिब रहमत है। खुदा तुम्हारे ईमान को यूं ही खो दे, खुदा ऐसा नहीं है। यहां पर हम देखते हैं कि जिनको खुदा ने हदायत बख्शी, खुदा हमेशा हदायत बख्शता है, रहनुमाई बख्शता है, ताकि इंसान उस ईमान तक आ जाए जो ईमान खुदा जाया नहीं होने देगा। जाया से मुराद उसका असर, उसका मकसद जो है वो फौत नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा। उस ईमान तक अगर कोई शख्स आता है तो उसका ईमान रायगा नहीं जाने दिया जाएगा, ये यहां पर लिखा है। और अगर कोई समझे कि ये तफसीर दुरुस्त नहीं है तो कॉल कीजिए, मैं मौजूद हूं, बात कर सकते हैं। इस आयत का जो शान नज़ूल है, पस मंजर है, वो किबला की तब्दीली का है, जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने या दुआएं करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन इसमें यह बात भी शामिल है, और खुली दावत देता हूं मैं हमेशा, बात रेफरेंस के साथ, जो भी शख्स कॉल करेगा रेफरेंस के साथ बात करेगा, जज्बात के साथ नहीं। कुतुब की रहनुमाई में बात होगी, इंसानों की अपनी जाती राय की बात नहीं। इखलाकियात के दायरे में बात होगी, इखलाकियात के दायरे से बाहर नहीं। इल्मुल तफसीर की रोशनी में बात होगी, इल्मुल तफसीर की रोशनी से बाहर नहीं। तो दावत है तमाम लोगों को, अगर कोई कॉल करना चाहे। अगली बात, ये जो ईमान खुदा जाया नहीं होने देता, ये किन पर ईमान है? खुदा ताला, कुतुब, अंबिया इकराम। इसके बारे में सूरह अल-माइदा उसकी 12वीं आयत हम देखते हैं। यहां पर लिखा है, खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओगे। यहां पर एक पैगंबर की बात नहीं, जमा है, पैगंबरों पर ईमान लाओगे। खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आप मत्ती की अंजील और लूका की अंजील में देखें तो फरिश्ते ने पैगाम दिया था कि उसका नाम, जब हुजूरुल मसीह यीशु मसीह ईसा मसीह की पैदाइश हुई तो आसमान से यह पैगाम आया था। और ये जो लफ्ज़ है, खुदा ने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूं, वहां पर लिखा है उसका नाम अमैनुएल रखना, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और इस आयत में यह वाज़ेह है, मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुम नमाज पढ़ते और ज़कात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान लाओगे। किन पर ईमान? जो जाया नहीं होता, वाज़ेह देखा हमने, पैगंबरों पर ईमान। एक अगली आयत भी हम देख लेते हैं, ये सूरह अल बकरा और 136वीं आयत है। और यहां पर मुखातबीन कौन है, खिताब कौन कर रहा है और किन से किया जा रहा है, इस आयत का कोई भी तर्जमा पढ़ लीजिए। और यहां पर वाज़ेह लिखा है, मुसलमानों कहो कि हम खुदा पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी उस पर, और जो सहीफे इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुए, और उन पर, और जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई उन पर, और जो और पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से मिली उन पर, सब पर ईमान लाए। हम इन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी खुदा वाहिद के फरमाबरदार हैं। सब पर ईमान, पैगंबरों पर ईमान लाए और हम कुछ फर्क नहीं करते। अगली आयत हम देखते हैं, यह भी यीशु मसीह ईसा मसीह के ताल्लुक से है। उनकी जो शान बयान फरमाई गई है माजी, हाल और मुस्तकबिल के ताल्लुक से। यहां पर हम देखते हैं सूरह अल इमरान और 55 आयत है, ऐ ईसा मैं तुम्हें सही सालम वापस ले लूंगा और तुम्हें अपनी तरफ उठा लूंगा, और जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है उनकी एज़ा से तुम्हें पाक कर दूंगा, और
जिन लोगों ने तुम्हारी अतबा की, पैरवी की, उनको क़यामत के दिन तक उन लोगों पर गालिब रखूंगा। अंबिया पर ईमान, और यहां पर वाज़े लिखा है जिन लोगों ने तुम्हारी अतबा की। और अगर दीगर तराजम आप पढ़े, खास तौर पर जो मौलाना अशरफ थानवी का है, तकी उस्मानी का है, और फतह मोहम्मद जलंधरी का है, इन तमाम अहबाब ने जो तर्जमा किया उसमें यह भी है कि जो तुम्हारी पैरवी करेंगे क़यामत के दिन तक उन लोगों को गालिब रखूंगा। और यहां पर हम देख रहे हैं कि पूरा मंसूबा बयान फरमाया गया है। अंबिया पर ईमान, क़यामत तक जो तेरी इत्तबा करेंगे, जो तेरी पैरवी करेंगे, मैं क़यामत के दिन तक, क़यामत तक का मंसूबा है, उनको गालिब रखूंगा। खुदा ईमान जाया नहीं होने देगा। अगली बात हम देखते हैं इसी ताल्लुक से, माजी, हाल और मुस्तकबिल, कि जब यीशु मसीही खुदावंद मानते हैं और जो हमारे मुसलमान बहन भाई हैं वो नबी मानते हैं। और यहां पर अबरानियों के खत में लिखा है यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अबद तक यकसां है। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसां है, माजी, हाल और मुस्तकबिल अबदियत में। और ये अकीदा इस्लाम और मसीहत में है कि वो जिंदा हैं। और यहां पर हमने अल इमरान 55 में देखा कि क़यामत तक जो पैरवी करेंगे वादा है कि वो गालिब रहेंगे। और अबरानियों का मुसन्नफ इस बात को खोलता है कि यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसां हैं। वो माजी, हाल और मुस्तकबिल में वो जिंदा हैं। और अगर कोई बात, कोई शख्स ये समझता है कि उसकी समझ में नहीं आ रही, बात खुल नहीं रही, तो फिर जरूरी है कि वो इस तरफ रुजू करे कि वो जिंदा हैं। और उनकी कुदरत जिसके बारे में कुरान और बाइबल बयान करती है, अगर वो माजी, हाल और मुस्तकबिल में है, तो उनकी कुदरत के बारे में आइए हम देखते हैं, जो कि मौजज़ाना कुदरत बयान फरमाई गई है। ये सूरह अल इमरान है, 48 से 55 आयात में आप देख सकते हैं। यहां पर आपके सामने चंद आयात रखना चाहता हूं और फिर हम बाइबल की आयत भी इसी ताल्लुक से देखेंगे। और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं। वो ये है कि तुम्हारे सामने मिट्टी की मूरत बशक्ल परिंदा बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं तो वो खुदा के हुक्म से सचमुच जानवर हो जाता है, और अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूं, और खुदा के हुक्म से मुर्दे में जान डाल देता हूं, और जो कुछ तुम खा कर आते हो और जो अपने घरों में जमा रखते हो सब तुमको बता देता हूं। अगर तुम साहिबे ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए कुदरत खुदा की निशानी है। अगर तुम साहिबे ईमान हो, वो ईमान जो जाया नहीं होगा, अंबिया पर ईमान। अगर तुम इस ईमान में आना चाहते हो तो इसमें तुम्हारे लिए खुदा की तरफ से निशानी है, उसकी पहचान जरूरी है। और निशानी कि उनकी कुदरत कल, आज, बल्कि अब तक यकसा। अब हम देखते हैं मत्ती की अंजील में इन्हीं मोजज़ात की कुदरत का बयान। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाहत की खुशखबरी की मनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की खिदमत, जब वो इस जमीन पर आए तो उनकी खिदमत में ये बातें हमें वाज़े तौर पर नजर आती हैं कि वो शिफा देते थे, जो बदरू गिरफ्ता शैतान की कैद में होते थे उनको आजाद करते थे। और जब अबरानियों के खत में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, और कुरान में देखा कि अंबिया पर ईमान खुदा जाया नहीं होने देता। अगर यीशु मसीह कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है, तो क्या आज के दौर में भी ये कुदरत जो शिफा बख्शती है, ये कुदरत
जो बदरूहों से, शैतान से छुड़ाती, आज जो शख्स भी उनको पुकारता है, क्या ये कहानियां ही थी या ये आज भी जैसे माजी में सच और हक था, क्या ये आज भी ऐसे ही सच और हक है? आज मेरे साथ एक मेहमान हैं, उनके साथ बात करेंगे। वो ना मुसलमान ना मसीही, लेकिन ये जो तालीम है, ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई से वो वाकिफ हुए तो उनकी जिंदगी में यीशु मसीह खुदावंद मसीही मानते, मुसलमान ईसा मसीह पैगंबर नबी मानते हैं। ये शख्स, आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से उनकी जिंदगी में ये सच्चाइयां, जिन किताबों को हम पढ़ते हैं और सदियों से पढ़ रहे हैं, सदियों से गौर खोज कर रहे हैं, लेकिन क्या ये कुदरत जो उनकी जात के वसीला से, ये बरकत जो उनकी जात के वसीला से, अबलीस से छुटकारा, ला इलाज मर्ज शिफा पाने की वो कुदरत जो उनके वसीला से मुहैया है, क्या हम खुद और हमारे दीगर जो लोग हैं हमारे अतराफ में, क्या इस बरकत से फैज पा रहे हैं? और हमारे साथ ये मेहमान जिनसे मैं मुतारफ करवाने जा रहा हूं, वो आज ये तमाम बातें जो हमने अभी देखी हैं, इनका अमली सबूत किस तरह से जिंदगियों में होता है। आइए हम तारफ करवाना चाहता हूं, मोहतरम भाई कमलेश साहब हमारे साथ हैं। कमलेश भाई, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ शरीक हुए। अब मैं आपसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप ये बताइए, आपका जन्म किस परिवार में, ख़ानदान में हुआ? बचपन की ज़िंदगी कैसी थी? वालिदैन जो थे वो किस मज़हब के पैरोकार थे? इससे पहले जवाब देने से पहले डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपका, खुदा का और पाक रूह का और इंडिया और ये ज़िंदगी टीवी है, इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनके वसीले से मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने जीवन की गवाही, अपनी ज़िंदगी की गवाही तमाम उन लोगों को दे सकूं जो बहुत सारे दबे हुए हैं और जिन तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा है, वो इस गवाही के द्वारा ज़िंदगी को पाएं, आशीष को पाएं, बरकत को पाएं। जी, बहुत शुक्रिया, यही मकसद है और उसका पहला कदम यही है कि हम जानें आप कहाँ पैदा हुए, आपका परिवार, ख़ानदान कैसा था, किस मज़हब की पैरवी आपके वालिदैन और आप करते थे। थोड़ा सा पहले ये बताइए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, मेरे जो माता पिता थे वो हिंदू परिवार से हैं। मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ और उसी में पल बढ़ के बड़ा हुआ। वहाँ पे जो बचपन में मेरा जो बीता, वो मेरा हिंदू परिवार में ही बीता। जैसे कि हिंदू धर्म में मूर्तियाँ पूजा करते, हर जो पूजा करते, जो भी उपवास रखना, रोज़े रखना, हिंदू धर्म में जो भी, उसके अनुसार ही मेरा पूरा जीवन गुजरा। और जब मैं, डॉक्टर साहब, जब मैं यहाँ तक कि जो मेरे फादर साहब थे, उनको क्या हुआ, जब मैं 13 साल का हुआ, 12-13 साल का हुआ, तो मेरे फादर साहब ड्रिंक करने के कारण उनको कैंसर हो गया। उनको कैंसर हुआ, तो जिनके कारण उनको काफ़ी कैंसर के कारण उनकी, जब मैं 1-1.5 साल के बाद, जब मैं 14 साल का हुआ, तो उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। तो उसके बाद हमारा ऐसा ही चलता रहा। हमारे और मेरी मम्मी थी, जो माता जी थे मेरे, तो वो भी हिंदू परिवार से ही और लगातार यही कार्य करते थे। कभी इसकी पूजा करनी, कभी उसकी पूजा करनी, मतलब रोजे रखने, व्रत रखने, उपवास रखने, संतोषी जी, माता बहुत के व्रत शुक्रिया, रखने, हर तरह से। बहुत शुक्रिया कमलेश साहब। आपने फरमाया कि कभी इसकी पूजा करनी, कभी उसकी पूजा करनी, तो बहुत से देवी देवता हैं और मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो आपका परिवार, आप खुद कौन से डॉक्टर साहब, देवी या देवताओं की पूजा करते थे और उसमें क्या क्या शामिल होता था और आप क्यों वो करते थे?
डॉक्टर साहब मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी, एक जी, बार दोबारा मैं बोलेंगे फिर प्लीज़? से आपसे सवाल जो है वो दोहराऊंगा कि आप ये बताइए कि हिंदू मज़हब में बहुत से देवी देवता हैं। आपका जो जी। ख़ानदान है वो कौन से देवताओं और देवियों की परस्तिश करता था? और जो रस्में आप करते थे वो क्यों करते थे? उसके पीछे क्या वजह होती थी? क्यों वो करते थे आप? क्या पाना चाहते थे? तो पहले तो ये बताइए कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे? और फिर जो आप ये रोज़े और चढ़ावे चढ़ाते थे, ये क्यों चढ़ाते थे? क्या मकसद था इनका? और क्या वो मकसद पूरा भी होता था या नहीं? डॉक्टर साहब, जो जिन ये जो हमें मूर्ति पूजा मिली थी, ये हमारे दादा परदादाओं की तरफ से हमें विरासत में मिली थी, कि जो हमारे दादा परदादा करते थे, माता पिता करते थे, वो ही आगे हम भी करने लगे। जैसे कि मेरी मामी थी, मेरी माता जी थे, वो क्या करते थे कि वो संतोषी माता के व्रत रखते थे। बहुत ज़्यादा व्रत रखते थे। हर शुक्रवार को उन्होंने खाना नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, कुछ जो भी कुछ बनता था वो नहीं खाना। तो इस प्रकार से वो अलग व्रत रखते थे। मैं अलग व्रत रखता था। मैं सोमवार का व्रत रखता था, शिव जी का, शिव शंकर का। तो और हमारे घर में अलग-अलग तरह के हर व्यक्ति अलग-अलग तरह से व्रत रखता था। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आप रोज़ा रखते थे, आपकी माँ भी और आप भी, क्या मकसद था रोज़ा रखने का और कभी वो मकसद पूरा भी हुआ या नहीं? अ, डॉक्टर साहब, जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि वो मकसद तो आज तक कभी पूरा ही नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, जब मेरे जो मदर थे, जो मम्मी थे, वो इतना रोज़े रखते थे, व्रत रखते थे, फिर भी उनके जीवन में कोई शांति नहीं थी। जी, जबकि क्या हुआ। मोहतरम कमलेश साहब, मेरी ये हाँ दरख्वास्त जी। होगी कि जब मैं बात पूछना मैं चाहता हूँ वो आप हमें बताइएगा पहले। मैंने आपसे ठीक है। दरख्वास्त की, आप ये बताइए कि मकसद क्या होता था? वालदा रोज़ा रखती थी, मकसद क्या होता था? आप रोज़ा रखते थे, मकसद क्या होता था? पहले तो मकसद बताइए, जी, फिर ये जी बताइएगा कि कभी वो मकसद पूरा हुआ भी या नहीं? आपने कहा कभी पूरा नहीं हुआ, तो वो मकसद क्या था जो पूरा नहीं हुआ? ये मैं चाहूँगा थोड़ा-सा धीरे से सोचिए जब मैं बात करता हूँ और फिर उसका जवाब दीजिए। बहुत से दुनिया में लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं। वो समझते हैं कि शायद कभी वो मकसद पूरा हो जाएगा। तो आप ज़रा वो मकसद बयान कीजिए, क्यों रखते थे वो रोज़े? क्या आप मेरी हेलो आवाज़ डॉक्टर सुन साहब। सकते हैं? सर, मैं आपकी आवाज़ क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ, बहुत अच्छा, डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलें अब ये बताइए कि रोज़ा रखने का मकसद क्या था? मकसद बताइए और फिर आपने बताया वो पूरा तो कभी नहीं हुआ। माँ का मकसद, अपना मकसद रोज़े रखने का। जी, मेरी माँ का मकसद था जो व्रत वगैरह रोज़े रखने का, वो ये था कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, हमारे घर में पैसा रहे, हर तरह से हम रोग मुक्त रहें, कोई हमें बीमारी ना हो, हर तरफ से मेरे बच्चे ठीक रहें, सब कुछ परिवार कुशल मंगल से रहे, ठीक-ठाक रहे, उनके पीछे ये मकसद होता था। और ये मकसद आपने कहा कि कभी भी पूरा नहीं हुआ। हाँ जी। आप बताइए, आप भी ये म रोज़ा रखते थे शिव का, तो आपका क्या मकसद होता था और वो कभी मकसद पूरा हुआ? जी, जो मैं शिव जी का उपवास रखता था हर सोमवार को, इसके पीछे भी मेरा यही था कि मैं एजुकेशन में, पढ़ाई में आगे बढ़ूँ, आगे चल के मैं कुछ न कुछ अपने लिए कुछ कर सकूँ, अच्छी नौकरी पा सकूँ, अपना फ्यूचर को मैं, अपने भविष्य को मैं अच्छा बना सकूँ। तो आपका मकसद पूरा हुआ कभी? सर, सुनाई नहीं दिया, आपकी आवाज़ अच्छा, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी सर, अब आई तो थोड़ी। आप रोज़े तो रखते रहे इन मकासद के लिए, तो कभी ये मकासद पूरे भी हुए या नहीं? रोज़ा सर, रखने समझ नहीं का, आया, आपकी आवाज़ बहुत बहुत आवाज़ कट रही है सर जी आपकी। वो मुझे पता है, कभी-कभी ये होता है क्योंकि ये बातें अहम हैं। ये बातें खुदा की बरकत की हैं, ये बातें खुदा की तसल्ली की हैं, ये बातें खुदा की ज़िंदगी की हैं, ये बातें खुदा के रोगों को, खुदा जो रोगों को मिटाता और शिफा देता है उसकी हैं। ये बातें शैतान की कुव्वतें जो खुदा बर्बाद कर देता है, ये वो बातें हैं। इसलिए रुकावटें कभी-कभी होती हैं, लेकिन ये रुकावटें पहले भी इनसे जो मकासद वो लेना चाहती थी वो कभी पूरे नहीं हुए और आज भी खुदा
जो जिंदगी का खुदा है, जो मोहब्बत का खुदा है, जो बचाने वाला खुदा है, जो शिफा देने वाला खुदा है, जो बरकत देने वाला खुदा है, जो हमेशा से हमेशा तक साथ रहने वाला खुदा है, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस ये फरमाती है, जब वो पैदा हुआ तो लिखा है जो लोग मौत के साया की वादी में बैठे थे उन पर नूर चमका, और वो लोग जो अबलीस की कैद में थे वो छुड़ाने के लिए आ मौजूद हुआ। और उसके बारे में लिखा है, उसने फरमाया खुदा का रूह मुझ पर है, खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुना दूं, जो रूहानी तौर पर गरीब हो चुके हैं, जिनकी मंजिल खुदा नहीं बल्कि बर्बादी और तबाही है। मैं उनको खुशखबरी सुनाऊं कि खुदा ने तुम्हारी गुर्बत का इलाज कर दिया है। गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं कि खुदा तुम्हारी उस फिक्र में जो उसको तुम्हारे लिए है उसने मुझे भेजा है, ताकि मैं तुम्हें यह खुशखबरी सुनाऊं कि खुदा इस जमीन पर तुम्हारी फिक्र करता है और तुम्हारा रूहानी गरीब होना खत्म कर दिया गया है। अब मसीह के वसीला से रूहानी तौर पर तुम अमीर बनकर हमेशा की जिंदगी पा सकते हो। उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं, जो मजहब की तालीमात और शरीयतों के नीचे, जो गुनाहों के नीचे कुचले जा चुके हैं, जो रास्तबाज होने के लिए थक चुके हैं, उनके लिए मैं खुशी का ऐलान करूं, बहाली का ऐलान करूं कि खुदा के साथ तुम्हारा ताल्लुक बहाल हो सकता है। खुदा तुम्हें कबूल करने के लिए तैयार है, उसकी राहों की तरफ आ जाओ। कुचले हुओं को आजाद करूं और उसके साले मकबूल की मनादी करूं कि आसमान की बादशाहत नजदीक आ गई है। खुदा तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे दरमियान में आ गया है। अब तुम पर यह फैसला है कि नूर तारीकी में चमक रहा है, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें आसमानी बादशाहत के वारिस ठहरा दिया। ये यीशु अल मसीह के बारे में आसमानी पैगाम जो दिया गया है। और जब कभी रुकावटें होती हैं तो ये रुकावटें कोई रुकावटें नहीं हैं। तो क्या उनके साथ राब्ता अगर बहाल हो चुका है तो जनाब मोहतरम पास्टर कमलेश साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए यीशु मसीह तक आने का सफ़र कैसे और कब शुरू हुआ? यीशु मसीह तक आने का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? अब सिर्फ ये बात मुझे बताइएगा। जी, यीशु मसीह तक, डॉक्टर साहब, यीशु मसीह तक आने का सफ़र मेरा 1999 को शुरू हुआ। उस समय क्या हुआ कि मेरी जो मम्मी थी उनकी डेथ हुई थी। डेथ होने के बाद ऐसा हुआ कि हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा समस्या चल रही थी। हम सभी भाई एक कमरे में रहते और हमारे घर में पैसों की तंगी, हर तरफ से तंगी चल रही थी। मतलब ये था कि हमारे घर में खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो इस टाइम में क्या हुआ कि मुझे एक समस्या हो गई कि मेरे कान के अंदर, मेरे राइट कान के अंदर मेरे पानी चलने लगा। और मैंने इसका, और घर में हमारे पैसे भी नहीं था और मैं स्कूल जाता था, 12th क्लास में पढ़ता था। तो स्कूल जाने के साथ साथ मैं देखता था कि कहीं पे मुझे कुछ पैसे मिले जिससे कि मैं अपने कान का इलाज करा सकूं। कान का इलाज कराने के लिए मैंने लोकल डॉक्टरों को भी ट्रीटमेंट करवाया, इधर बहुत से ट्रीटमेंट कराया, पर मुझे कहीं भी इसका इलाज कराने के बावजूद भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और दिन ब दिन मेरे कान की हालत ख़राब होती जा रही थी। अगर मैं रात को सोता था तो कान में इतना रुई लगा के सोता था, कॉटन लगा के सोता था, जिससे कि सुबह उठते ही क्या हुआ था कि वो मेरे कान का, जो कान में डाली हुई रुई है, वो इतनी भर जाती, उसको चाहे ऐसे निचोड़ लूँ मैं, इतना पानी उसमें चढ़ता था। इस परेशानी से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था और मैं दुआ करता था, मैं क्या, हे भगवान ठीक कर दे, हे भगवान, क्योंकि मैं पहले हिंदुइज्म में था तो उन्हीं को मानता और उन्हीं को याद करता। दिन पर दिन उन्हीं को याद करने के साथ साथ यही करता रहा किसी न किसी तरह मैं ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इलाज करा सकूं अपना। और मेरे बड़े भाई थे, वो भी गरीब थे, तो वो भी इतना नहीं था कि वो मेरा इलाज करा सके। और इसी दौरान क्या हुआ डॉक्टर साहब कि मैं 12th क्लास में था, मेरी क्लास के अंदर
एक मेरे मित्र थे, मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ ही पढ़ते थे, मिस्टर विक्रम, वो आजकल प्रभु की सेवा करते हैं, भाई विक्रम हैं, उन्होंने उनके साथ मेरी दोस्ती हुई। मेरी दोस्ती होने के साथ-साथ उन्होंने मुझे ये बताया, वो मेरे पीछे लग गए भाई, कि भाई तुम मेरे साथ चर्च में चल। मैं कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, चर्च में नहीं जाऊँगा, क्योंकि सभी लोग अपने-अपने धर्म का प्रचार करते हैं। मैं तो शुरू से हिंदू धर्म को मानता हूँ, हमारे क्या देवी-देवता कम हैं जो मैं एक और देवी-देवता को मान लूँ? उसने मुझे समझाया, पर मुझे कोई भी बात उसकी समझ नहीं आती थी, सारी की सारी मेरे ऊपर से निकल जाती थी। मैं कहा बकवास है सब, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि ये ईसाई लोग हैं, ये लोगों का धर्म बदलते हैं और लोगों को पैसा देकर ईसाई बनाते हैं, इसलिए मैं इनके पास नहीं जाऊँगा। पर डॉक्टर साहब ऐसा चलता रहा, कोई काफ़ी दिन हो गए और होते-होते मेरे कान की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई और इन्हीं दिनों हमारे घर में भी एक और समस्या आ गई। क्या हुआ, जो मेरे बड़े भाभी थे, उनके अंदर दुष्ट आत्मा आ गई, इविल स्पिरिट आ गई। तो इस समय हमारे घर की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई। क्या हुआ कि मेरी भाभी मंजे में बैठे-बैठे ऐसे-ऐसे हिलती रहती और घर का कोई काम-काज नहीं करती और सारा घर का काम हमें ही करना पड़ता। हम लड़के-लड़के घर का काम-काज करते, बड़ी परेशानी से होकर गुज़र रहे थे हम। तो इस समय ये जो दौर था हमारे लिए बहुत ही परेशानी का था, जिससे कि हम बड़ी मुश्किल से गुज़रे। और तो जब मैं रोज़ स्कूल जाता, तो इसमें ऐसा होता कि मेरा चेहरा उतरा-उतरा लगता। एक तो मैं अपनी कान के दर्द से परेशान, कान में पानी बहने से परेशान और दूसरा कि मेरे घर में इतनी समस्या और तीसरी हमारे घर में गरीबी की समस्या। तो जो मेरा फ्रेंड था, मेरा मित्र था, तो मैंने उसको बताया, वो मेरे पीछे पड़ा रहता कि मैंने कहा, "भाई ऐसे-ऐसे बात है, ऐसे-ऐसे बात है कि मेरे घर में ना मेरे कान में दर्द होता है।" तो कह रहा कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ, मैं तेरे लिए दुआ करूँगा और तुम मेरे साथ चर्च में चलना और तेरे कान का दर्द ठीक हो जाएगा। कि हमारे चर्च में बहुत बड़े-बड़े चमत्कार होते हैं, लोगों को बदरूहों से छुटकारा मिलता है, इतना बहुत कुछ होता है कि जो लोग लंगड़े थे वो चलने लग जाते हैं। तो मैं कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी तरह से देखा जाए, ये तो संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है? कि जो काम जो मैं डॉक्टरों से करवा रहा हूँ, जो डॉक्टरों से मैं इतने टाइम से करवा रहा हूँ, क मेरे कान के अंदर जो समस्या थी, वो ठीक नहीं हो रही, तो वो लोग चर्च में जाके दुआ से कैसे ठीक हो जाएगा? तो मैंने उसको बताया अपने दोस्त को कि देख भाई ऐसी-सी बात है कि ये तो पॉसिबल नहीं है। पर मैंने उसका शुरू में मज़ाक उड़ाया और कुछ नहीं किया, बस मैंने छोड़ दिया। मैं कहा नहीं, नहीं मैं नहीं जाऊँगा चर्च में। तो थोड़ा चलते रहे और हमारे घर में जो मेरी भाभी की तबीयत है और ज़्यादा खराब होते-होते बढ़ने लगी। बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँच गई कि मेरी भाभी हमने क्या किया कि पंडित को बुलाया एक को। पंडित कहता कि मैं आऊँगा, सुबह आएँगे हम, इसको जो मेरी भाभी के अंदर बदरू है, उसको हम बोतल में बंद करके लेके जाएँगे। मैं कहा चलो, हम थोड़े खुश हुए कि हमें इस दुष्टात्मा से, इविल स्पिरिट से हमें छुटकारा मिलेगा कि अब हम थोड़ा-सा चैन से रह पाएँगे। पर ऐसा नहीं हुआ। वो आए, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। वो आए जैसे के जैसे चले गए। फिर क्या हुआ कि हमें ये लोगों ने बताया कि उधर चले जाओ, मौलवी साहब हैं, मौलवी जी से मिल लो आप, उनसे जाओ, उनको बुला लाओ। हम मौलवी जी को मस्जिद में चले गए, तो उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने एक कागज़ के ऊपर कुछ उर्दू में लिख के दे दिया। उन्होंने बोला कि पहले उनके माथे से टच करना और पैर से टच करना, 7 बार टच करके जला देना, वो ठीक हो जाएँगे। हम आए खुश होते हुए, तो कहे चलो अब ठीक हो जाएँगे। पर जैसे हम घर आए, हमने वही किया, पहले उनके 7 बार उनके माथे से टच किया और 7 बार उनके पैर से टच किया कि उसको हमने, उस कागज़ को हमने जला दिया। पर वो तो खेलने लगी, उनके अंदर और ज़्यादा आ गई और हमारी और ज़्यादा, और हमारी हालत भी खराब हो गई और हम बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? और ये भी था कि उन दिनों क्या हुआ था डॉक्टर साहब कि मेरी मम्मी की अभी-अभी डेथ हुई थी, जो कि क्या हुआ कि मेरी भाभी के अंदर मेरी मम्मी की आत्मा आ गई। वो कहती मैं हूँ, आत्मा बोलती कि मैं हूँ, मैंने तुम्हें बचा के रखा हुआ है। और जब थोड़ी देर के अंदर मम्मी चली जाती उसके अंदर से, तो क्या होता, मम्मी की बदबू चली जाती, तो क्या होता, दूसरे किसी और की बदबू आ जाती, कहते मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं। तो ऐसे-ऐसे चलते-चलते लगभग-लगभग 10 दिन गुज़र गए हमारे इसी हालत के अंदर, सोचते-सोचते।
तो मैंने परेशान होकर, जब मैं पूरी तरह टूट चुका था, तो एक दिन परेशान बैठा था, तो मैंने अपने दोस्त को बताया, मैं कहा देख भाई विक्रम, ऐसा है भाई विक्रम, ऐसी बात है कि मेरे घर में ना समस्या चल रही है। अगर मुझे इससे चंगाई मिल जाएगी तो मैं यीशु मसीह को ग्रहण करूँगा, अदरवाइज़ मैं यीशु मसीह को नहीं मानूँगा। तो इस दौरान उसने मेरे को बोला कि तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर कमलेश, मेरे भाई तू चिंता ना कर, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर देंगे, आप चिंता मत करो। मैं कहा चलो ठीक है। तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, मैं और मेरा फ्रेंड, क्या हुआ कि उस दिन मैंने उसको जिस दिन बताया, वो कहता कोई बात नहीं तू चिंता ना कर, हम आपके घर पे आएँगे। तो उन दिनों डॉक्टर साहब ऐसा होता था कि वो थो उस दिन के कुछ दिन के बाद वो दोस्त मेरा पक्का दोस्त बन गया। तो हम क्या करते थे, स्कूल से भागकर हम वो मेरे घर पे गया, हाफ डे में, वो स्कूल से भागकर वो मेरे घर पे गया। उसने मेरे घर की हालत देखी, सामान बिखरा हुआ था, कुछ भी इधर-उधर सामान पड़ा है, कोई मतलब सामान रखने का कोई सिस्टम नहीं। मेरी भाभी ने उसको देख के घूरने लगी। उसने कहा कोई बात नहीं, ब्रदर आप चिंता मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग शाम को आएँगे और आपकी भाभी के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उससे ठीक करेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो ऐसा ही हुआ, फिर हम वापस स्कूल गए, तो उसके बाद शाम को मेरे फ्रेंड और उसका भाई दोनों हमारे घर पे आए। तो उन्होंने आकर हमारे घर पे दुआ की, और जैसे ही उन्होंने दुआ की, जो काम किसी के द्वारा नहीं हुआ, ना पंडित के द्वारा, ना मौलवी के द्वारा, ना मूर्ति पूजा के द्वारा, हमने इतने लोगों को दिखाया मेरी भाभी को, पर किसी के द्वारा नहीं हुआ। वो पलक झपकते ही वो दुष्ट आत्मा मेरी भाभी के अंदर से निकल के चली गई, और मेरी भाभी हँसने खेलने लगी। और उसी टाइम जिसने इतने दिन से घर का एक बर्तन नहीं उठाया था, वो क्या करने लगी, घर का सारा काम करने लगी। हम सब उसने चाय बना के पिलाई हमें, हम सब ने चाय पी, और उन्होंने हमारे घर, मेरे फ्रेंड्स जो दोस्त थे, उन्होंने प्रभु के गीत गाया, तो हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें ऐसा लगा कि एक बड़ी सी शांति आकर हमारे ऊपर ठहर गई, हमारे दिल के अंदर एक बहुत बड़ी शांति आ गई है। तो हम मैंने सोचा कि भाई ये तो वाकई ही चमत्कार है, यीशु मसीह में कुछ है। तो इस दौरान अगले दिन, जब अगले रविवार को जब संडे आया, तो क्या हुआ डॉक्टर साहब कि मेरा परिवार चर्च में गए, मेरे भाई भाभी चर्च में गए, वो वहां पे ठीक हो गए। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मेरे कान के अंदर दर्द था, पानी चलता था, जो भर भर के मैं कॉटन निचोड़ता था, वो उसमें ऐसा हुआ कि जब चर्च खत्म हुआ, तो हमारे जो फादर साहब थे, पास्टर नरेश पॉल, उन्होंने क्या किया कि सबके लिए प्रार्थना की। मैं भी लाइन में लग के उनके लिए, उनसे मैंने प्रार्थना को करवाया अपने लिए। जब उन्होंने प्रार्थना किया, तो मैंने घर आके चेक किया है कि मैंने, यार मेरे कान के अंदर जो मैं 1 मिनट 10 मिनट के 1 मिनट के बाद ही जो डालते ही कॉटन भर जाता था, यहाँ तक कि 1 मिनट के अंदर भरने लग जाता था। यार मैं इतने देर चर्च में बैठ के आया, दुआ करा के आया, घर में भी आ गया, तो मेरे कान में से पानी क्यों नहीं निकला, और कॉटन भी सूखी थी पूरी। तो मैं ये देख के हैरान रह गया। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने सोचा चलो आज नहीं निकला पानी, तो कल को फिर वही प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ कि मैंने फिर चेक किया सुबह उठ के। जैसे मैं रोज सुबह उठ के देखता था, पानी भरा मिलता था कॉटन में, पानी पास चलती रहती थी। तो अगले दिन सुबह उठ के देखा, मेरा कान सूखा, बिल्कुल सूखा। तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया। मैं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा दे दिया, चंगा कर दिया है। तो मैं स्कूल गया, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, उसने मुझे कहा भाई आप मेरे साथ चर्च में चलो। तो हम स्कूल से भाग के हाफ डे स्कूल से लेके हम चर्च में, जैसे हमारे कोई पीरियड्स फ्री होते थे, तो हम उसमें चर्च में चले जाते थे, और वहां जाकर हम, जो हमारे फादर साहब थे, पास्टर जी थे, संत नरेश पॉल जी, उनके साथ बैठ के हम संगति करने लगे। डे बाय डे हम जाने लगे, तो उन्होंने हमें वचन के बारे में सिखाया। तो मुझे तब जाके ये महसूस हुआ कि वाकई ही मुझे परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर की ज़रूरत है, मेरे जीवन में परमेश्वर की ज़रूरत है। तो उस दिन मैंने परमेश्वर को अपने जीवन में अंगीकार किया, तौबा किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार किया। और उस दिन से मेरा जीवन परमेश्वर ने बदलना शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया कमलेश साहब,
آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتائی ہیں، اور پوری دنیا میں جو لوگ ان باتوں کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے کیوں نہیں ہے؟ پانی اگر آپ کے پاس کوئی لے کر آتا ہے، آپ پیاسے ہیں، جب آپ اس کو پئیں گے تو آپ کی پیاس وہ پانی بجھائے گا، چونکہ اس کے اندر یہ تاثیر ہے۔ جب ہم نے تعلیم دیکھی خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، مسیحی مانتے ہیں، مسلمان بہن بھائی نبی مانتے ہیں، وہ کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہیں۔ ہم نے اناجیل اور قرآن کی آیات دیکھیں، ان کی معجزانہ قدرت پڑھی، آپ کے سامنے میں نے بیان بھی کی۔ وہ کل ماضی میں جو گزر گیا ہے، حال آج، اور پھر سورہ العمران 55 آیت، عبرانیوں کا خط 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت۔ یسوع مسیح کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ یہ برکات کیسے آتی ہیں، یہ اہم نکتہ ہے۔ ان کے کلام، ان کی باتوں پر غور کرنا، ان کو پکارنا، جتنوں نے بھی انہیں پکارا، جو بھی لوگ اس کے کلام کی طرف مائل ہوئے، پڑھا، غور کیا، ایمان لائے اور ان کو پکارا، ان کو موقع دیا کہ ہمیں ضرورت ہے، ہماری حالت آپ کے سامنے جہاں جہاں کملیش اور ان کا خاندان گیا، کسی کی دل آزاری کی بات نہیں ہے۔ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں، وہ ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، مختلف جو حکیم ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر وہ کسی کے پاس جاتے ہیں تو اس میں کسی کی عزت کو کم کرنا نہیں، وہ بھوکے ہیں، وہ تلاش میں ہیں کہ ان کے مسائل کا حل، بیماریوں کا حل، بدروحوں سے رہائی، حل ملے۔ اور یسوع مسیح نے یہ کس طرح سے کر دیا، آپ نے کملیش بھائی کی زبانی سنا اور دیکھا ہے۔ کملیش صاحب، جی سر۔ آپ نے یسوع مسیح کو خداوند، اپنے گناہوں کو بخشنے والا قبول کیا، اور میں پوری دنیا میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، فروز اللغات اردو کا لغت ہے، یہ مولوی الحاج فروز الدین صاحب نے لکھا ہے۔ جب وہ نام عیسیٰ مسیح کے معنی بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گناہوں سے بچانے والا، اور یہ صداقت آپ نے آج ایک ایسے شخص کی زبانی سن لی جو نہ مسیحی اور نہ مسلمان تھا۔ یہ سچائی اس پر کھل گئی، اور آج اس سچائی کے کھلنے کے بعد آپ کی زندگی یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد کیا تبدیلیاں آئی ہیں، کچھ وہ بتائیے، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ دنیا کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح کو قبول کرنے کے بعد کیا تبدیلیاں آئیں، 5 منٹ میں آپ کو دوں گا اس کے لیے، اور اس کے بعد آپ سے میں پیغام پوچھوں گا پوری دنیا کے لیے۔ تو یہ بتائیے، مسیح کو قبول کرنے کے بعد زندگی میں کیا تبدیلیاں آئیں؟ ڈاکٹر صاحب، جیسے ہی میں نے مسیح کو قبول کیا، مسیح کو قبول کرنے سے پہلے دن ہی میں ہر ٹائم میرے منہ پہ گالی چڑھی رہتی تھی، تیری ماں تیری بہن، ایسے ایسے کر کے ہمارے منہ پہ، جو کہ انڈیا میں ہے، وہ لگی رہتی تھی کہ اسکول میں جانا، کوئی بات بولنی، اس کے بعد ماں بہن کی گالی ہم نے ضرور دینی ہے، کوئی ایک ورڈ بولنا اس کے بعد ماں بہن کی گالی۔ جیسے فرسٹ ڈے، پہلے ہی دن جیسے ہی میں چرچ میں گیا اور میں وہاں پہ جا کے بیٹھا، تو جب میں چرچ سے باہر نکلا تو میں خود حیران تھا کہ میرے منہ سے گالی کیوں نہیں نکلی ابھی تک۔ ایک بھی نہ گالی نکلی، نہ کوئی کسی کو برا شبد بولنے کا نکلا میرے منہ سے۔ میرے منہ سے صرف یہی نکلا، صرف یہی شبد نکل رہا تھا بار بار، ہالے لویا، ہالے لویا، ہالے لویا، صرف یہی میں بار بار دوہرا رہا تھا، ہالے لویا۔
अब क्योंकि नाजरीन परमेश्वर तेरा धन्यवाद। नाजरीन अब ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हालेलुया, इसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की तारीफ़ हो। ये है इसका मतलब, हालेलुया खुदा की तारीफ़ हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये है हालेलुया का मतलब। तो एक तो ये आपकी ज़ुबान उसने बदल दिया, आपका बातन बदल दिया, और इसके अलावा क्या क्या तब्दीलियाँ हुई? जी डॉक्टर साहब, मेरे जीवन में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई कि जैसे कि मैंने खुदा की राहों पे चलना शुरू कर दिया। मेरा जो पुराना जीवन था जो हम्म, पूरी तरह खत्म होने लगा था धीरे-धीरे। जो कॉलेज स्कूल्स में जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स थे, उनको मैंने साफ मना कर दिया। उनको मैंने यहाँ तक कि ये बोल दिया, बहन जी माफ़ करना, अब मैं आपके लायक नहीं रहा कि मैं अब प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरा जो जीवन गुजरेगा अब से वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए गुजरेगा। और इसके बाद जब जैसे आप मैंने उनको सतीश साहब, जब आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये जो ताल्लुक़ था जो दुरुस्त नहीं था, अब मेरा जीवन मसीह के लिए गुजरेगा, इससे क्या मुराद है? मेरा जीवन अब मसीह के लिए गुजरेगा, इससे क्या मुराद है? आप क्या कहते हैं? जी मसीह के लिए गुजरेगा कि मेरी जो सारी जीवन है वो मसीह के लिए, मैं खुदा के कलाम को, जो सच्चाई मैंने पाई है, जो सच्चाई के बारे में मैंने जाना है कि एक ही प्रभु है, को उसके उसके अंदर बाइबल के अनुसार अपने जीवन को गुजारना है। मेरा जीवन आज के बाद यह है कि मैं अपने अनुसार, अपने जो चाल चलन मेरा पहले था, जैसे मैं पहले चलता था वैसा ना चल के बाइबल के अनुसार खुदा के कलाम को मानते हुए मैं अपने जीवन को गुजारूंगा। बहुत शुक्रिया, पास्टर कमलेश साहब हमारे साथ हैं, और जब वो कह रहे हैं कि मेरा जीवन अब यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक गुजरेगा, तो इससे क्या मुराद है? किसी ने पूछा खुदावंद यीशु अल मसीह से कि जनाब सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तो यह है, जब कोई मसीही हो जाता है, यह हुक्म जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अनाजील में मौजूद है कि खुदावंद पहला हुक्म, सबसे बड़ा हुक्म जिस पर तमाम शरीयतों का दारोमदार है, वो ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और इसकी मानित ऐसा ही दूसरा हुक्म यह है कि अपने हम जिन्स इंसान से मोहब्बत रख। नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, तासुब नहीं। और बहुत से मसीही भी इस मोहब्बत के जब अमली सूरत आती है कितने पूरे उतरते हैं, और ये मैं सबसे कह रहा हूं, खुद से भी कह रहा हूं, और जो दीगर लोग हैं वो इस मोहब्बत पर करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। ये मौलाना हाली को मुकाशफा कहां से मिल गया? खुदा से मोहब्बत और अपने हम जिन्स इंसान से मोहब्बत। उसका मजहब क्या है, उसकी जात क्या है, उसका इलाका क्या है, वो क्या सोचता और करता है, बिला इम्तियाज मोहब्बत ही मोहब्बत, जिंदगी ही जिंदगी। ये है तर्जे जिंदगी अलमसी की पैरवी में। कमलेश साहब, आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूं। पूरी दुनिया के लोगों को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें इस वक्त, तो पूरी दुनिया के खुदावंद आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन अगर यही मौका हो सिर्फ आपके पास, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे पूरी दुनिया के लोगों को? लोग ये सुन और देख रहे हैं, और देखेंगे और सुनेंगे भी। डॉक्टर साहब, मेरा जो दुनिया के लिए एक ही पैगाम है, चाहे ये मेरा आखिरी दिन हो, मैं अपने जीवन के किसी भी दिन को ये सोच के चलता हूँ कि अगर आज मुझे प्रचार करने का आखिरी मौका मिला जाए तो मैं सबको एक ही बात बोलूंगा कि केवल इस जमीन को बनाने वाला, आसमान को बनाने वाला केवल एक ही खुदा है, जिसका नाम यीशु मसीह है। खुदावन यीशु मसीह है। उसके सिवा ना तो कोई दूसरा खुदा हुआ है और ना है और ना होगा। केवल यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही खुदा है। इसलिए हम सबको केवल एक खुदा, जिसने जमीन आसमान को बनाने वाले खुदा, जिसका नाम यीशु मसीह है, उसके पास आएं और अपने गुनाहों की माफी को पाएं। केवल इस दुनिया के अंदर एक ही हमारे गुनाहों को माफ कर सकता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। उसका पाक लहू हमारे सब पापों को क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है। जैसा कि यूहन्ना 1:7 में लिखा है, पहला यूहन्ना 1:7 लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से, गुनाहों से माफ करता है, साफ करता है।
اور میرا یہی پیغام ہے کہ ہر ایک دنیا کا انسان صرف یہی جانے، یہی دیکھے کہ کیول یشو مسیح ہی پربھو ہے، اس کے سوا نہ دوجا کوئی خدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ آمین۔ بہت شکریہ کملیش صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ بہت شکریہ کملیش صاحب، آپ نے وقت نکالا اور آنے والے دنوں میں بھی خداوند کے فضل سے آپ کو براہ راست شو میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے اور آپ کی خدمت کو بھی بڑھائے۔ آخر میں جو کملیش صاحب نے فرمایا، یہی یسوع مسیح جب یوحنا عارف مکاشفہ کی کتاب میں لکھتا ہے، تو مکاشفہ کی کتاب 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ زندگی لے لو، معافی لے لو، شفا لے لو، ابدیت کی بادشاہت کے شہری بن جاؤ۔ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی کھولے گا تو میں اس کے ساتھ اندر آ کر کھانا کھاؤں گا۔ وہ زبردستی نہیں کرتا، وہ محبت میں آپ کے رد عمل، آپ کے جواب کا منتظر ہے۔ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں۔ اگر آپ گناہوں، اگر آپ بیماریوں، اگر آپ بدروحوں اور ابلیس کے قبضہ میں ہیں، آپ کے پاس ابدیت کی، ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے، تو الفاظ یسوع المسیح، یسوع مسیح کے الفاظ، میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہوں، اے انسان تیرے لیے یہ برکات میں لے کر آیا ہوں، دروازہ کھول اور یہ تیری ہو سکتی ہیں۔ کیا آج ہم یسوع مسیح کی آواز کو سن کر اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو، اپنے گھروں کو، اپنی مسجدوں کو، اپنے مندروں کو، اپنے چرچز کو، بہت سے چرچز ہیں جن میں ابھی وہ باہر ہی کھڑا ہے، چونکہ اس کی مرضی، اس کا کلام اگر پورا نہیں ہو رہا تو پھر جو کچھ پورا ہو رہا ہے وہ اس کا کلام نہیں ہے۔ اگر وہ بادشاہ نہیں، اگر اس کی مرضی پوری نہیں ہو رہی، یہ برکات ساری دنیا کے لیے بلا امتیاز ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ آیا اور جس کے بارے میں لکھا ہے، قیامت تک جو اس پر ایمان لائیں گے خدا تعالی ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ وہ خدا کی بادشاہت میں ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہیں گے۔ یہ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، فیصلہ ہمارا ہے، برکات ہماری منتظر ہیں، ہم کس کا انتخاب کرتے ہیں۔ خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ کا میزبان دانیال۔